long time, but I could not. So, anyways, we'll just continue from the last class where we left off. So, we were doing strengthening, weakening. So, does anybody have questions? We discussed 5 questions of strengthening. So, I just want you all to answer. Like, do you want to continue from strengthening, or do you think we should start weakening as a subject, or what do you want to do? Because I have made sheets for both, so either one would be great. Any doubts or something? I'll explain the concepts of strengthening again. Okay, anything? Guys, so shall we discuss strengthening के few questions? Then फिर हम लोग weakening पे जा सकते हैं. Given that we had quite a long break, is that okay with everyone? Just write yes or no. Okay, then we'll just discuss, let's say, 5 strengthening today, and then we will start with our weakening one. Okay, wait, I'll just share my screen. Give me 2 minutes. Okay, so I'll be sharing my screen. Just let me know whether you're able to get it or not. Guys, is my screen visible? I cannot see anyone's response, but Yes, ma'am. oh, Yes, yes. thank you. Okay, so I guess in the last class we had done this question, this sleep one, Dr. Larson. So we'll just do 10. So I'll just repeat how we go about it. So the first thing is when we are dealing with strengthening passages, तो आपको फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड द कंक्लूजन इरेस्पेक्टिव ऑफ आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पूरे पैसेज ये जो पैसेज दिख रहा है इधर आपका इधर यू हैव टू फाइंड कि ऑथर ने किस इंटेंशन से ये पैसेज को लिखा था उन्होंने तो दैट्स व्हाई यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द कंक्लूजन ऑफ दिस पैसेज so does anybody just read this question number 10 and tell me what is the conclusion of the author.
Guys, I'm not able to see the screen, so even if you type it out in the chat, I won't be able to. Is anybody able to identify the conclusion? Okay, so whenever you have to identify a conclusion of a given passage, the first thing which you have to identify is look for words like this. So you have to basically look for words like because. You have to look for words like because. Give me 2 minutes ago. Words like because, so, hence and thus. So इधर हमारा passage का that is कि so one should not always purchase technologically advanced educational tools. That is it. So now what is our passage talking about? Is anybody able to answer yet? Because we did it in the last class. I do not see any answers, but it's okay. Like we'll just go through it. We'll just go through it together. So, the question here deals with in one study, engineering students who prepared for an exam by using toothpicks and strings did no worse than similar students who prepared by using expensive computers with sophisticated graphics. In another study, military personnel who had trained on a costly high-tech simulator performed no better on a practical exam than similar people who trained using an inexpensive cardboard model. So, what is the meaning here? इधर बोल रहे हैं कि कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे और दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम. तो देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल. एक ग्रुप ऑफ लोगों ने दे यूज्ड टूथपिक्स एंड स्ट्रिंग्स टू स्टडी. पढ़ाई करने के लिए व्हाट डिड दे यूज? टूथपिक्स एंड स्ट्रिंग्स. फिर उनका उनके सेम जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, लाइक आपके क्लास में से अगर हम 10 बच्चों को, वी हैव 15 स्टूडेंट्स और 7 को हम बोल रहे हैं कि ठीक है, वी आर प्लीज यूज टूथपिक्स टू स्टडी, और बाकी 7 बच्चों को आई एम गिविंग कंप्यूटर्स टू स्टडी. तो आप सोचोगे कि जिनको कंप्यूटर्स मिला है, जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, दे विल बी सक्सेसफुल, है ना? बट इधर वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, even if they are getting expensive computers or like they are studying with toothpicks or string, like अगर आप एक स्लेट लेके चौक पे लिखो या फिर आप लैपटॉप पे लिखो, आपका जो रिजल्ट जो है, पढ़ाई का लेवल दोनों को सेम मिल रहा है. लाइक वैसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें. In another study, military personnel who trained on a costly high-tech simulator performed no better. दूसरे एक उसी टाइप के दूसरे स्टडी में व्हाट डिड वी सी? मिलिट्री जो आर्मी में रहते हैं, उन लोगों ने पहले ट्रेन किया बहुत हाई टेक सिम्युलेटर्स में, लाइक बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी यूज की फॉर देयर ट्रेनिंग. फिर उन लोगों ने ये भी, फिर उन्होंने इनएक्सपेंसिव कार्डबोर्ड मॉडल्स वगैरह भी यूज किया, सेम लोगों ने, बट उनका दोनों का रिजल्ट सेम था. तो इन 2 स्टडीज वी फाइंड कि आपको फर्क नहीं पड़ता आप कितना खर्चा कर रहे हो, बिकॉज इफ यू आर लर्निंग, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप बहुत पैसे देके खर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर आप फ्री, अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, लाइक यूजिंग लाइक not so expensive things, so even then you would be able to get the same results. तो author यहाँ पे बोल रहा है so इधर so is our identifying word for finding the conclusion. तो आप सिर्फ इसी लाइन को याद रखना कि यही हमारा conclusion है और इसी को हमें strengthen या weaken करना है. तो ये बोल रहे हैं कि so one should not always purchase technologically advanced educational tools. Okay. Is sir here? ऑल्सो वो सर, आप अगर आप यहाँ पे हो तो हम ना ज्वाइन करना चाह रहे हैं, थोड़ा आप अलाउ कर दीजिएगा. ओके, सो एनीवेज अनरिलेटेड. तो नाउ
Which of the following principles, if valid, most helps to justify the reasoning above? अब ए में हो रहा है वन शुड ऑलवेज यूज different educational tools to teach engineering to civilians than are used to train military personnel. Can anyone identify कि ये आंसर होगा कि नहीं, लाइक होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों? Like just write it in the chat box or something. So the first thing we are dealing here, uh, guys, you have to write in the chat box. You are getting so unresponsive. Anybody wants to try, guys, please try. Like हम बोल देंगे, हम पूरा क्लास हम बोल के चले जाएंगे, but you still won't understand until you have like hands-on experience with regards to how to approach a problem. Okay, yeah, yeah, do tell me. That's fine. Which part did you not understand? Did you not understand the question? Because I have not started explaining the answers yet. That's what I'm asking. Did you not understand the question? Um, okay, I'll just explain the question again. Okay. इधर in this question they are saying कि अगर आप कुछ okay, let's like take a very real life example. तो नहीं, इधर से we'll do इन एक स्टडी कंडक्ट हुआ था, तो उधर देयर वर एक क्लास में लाइक द स्टूडेंट्स, उनको लैपटॉप, कुछ स्टूडेंट को हमने लैपटॉप से पढ़ने दिया, लाइक बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप है, बहुत उसमें एक्सपेंसिव ग्राफिक्स है, और कुछ स्टूडेंट्स को हमने एक टूथपिक और स्ट्रिंग दिया पढ़ाई करने के लिए। तो बट रिजल्ट के लाइक जब रिजल्ट आया उस स्टडी का, उसमें दिखाया था कि कुछ वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ा कि जो लोग लैपटॉप से पढ़ रहे हैं और जो लोग टूथपिक और स्ट्रिंग से पढ़ रहे हैं, दोनों का जो नॉलेज लेवल है वो सेम है हमारा, लाइक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट इज वाई दिस इज वन स्टडी। तो इतना तक आई होप इट्स क्लियर। Is it clear? Itna tak? Like this is just Yes, the ma'am. first part. Okay, thank you. In our second part of the study, एक क्वेश्चन एक दूसरा स्टडी कंडक्ट हुआ, और उस स्टडी में देयर वर मिलिट्री पर्सनल। And in the second study, what we found out was that military personnel जो है, वो जो आर्मी के लोग हैं, उन्होंने ट्रेनिंग किया, उन्होंने दो तरीके से ट्रेनिंग किया। एक ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रेनिंग की, और एक सिनेरियो में उन्होंने सिर्फ ऐसे कार्डबोर्ड के फिगर्स लेके उन्होंने ट्रेन किया। और इसका ये रिजल्ट आया कि जिन्होंने पैसे खर्च करके लाइक इतना ज्यादा खर्चा करके ट्रेनिंग वगैरह किया, अगर आप वो कार्डबोर्ड मतलब अगर वही चीज आप कम खर्चा करके भी कर सकते हो, लाइक दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है इन दी एंड। तो इसीलिए वी शुड नॉट ऑलवेज परचेज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एजुकेशनल टूल्स। इसीलिए बात कर रहे हैं कि हमें कभी लाइक ज्यादा पैसा खर्च करके लाइक ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो हमारा सेम ही है। अगर आपका एक काम फ्री में हो जा रहा है और आप उसे पैसे दे के कर रहे हो, और तो आपका रिजल्ट सेम हो रहा है, तो आप कौन सा चूज करोगे? आप तो सोचोगे ना कि लेट मी सी कि फ्री में जो हो जा रहा है, मेरा कम पैसे में जो हो जा रहा है, आई विल चूज दैट ओनली। तो दिस इज द होल क्वेश्चन।
Are there any doubts in the question yet? A toothpick मतलब वो जो होता है ना कि अगर something gets stuck in your teeth तो आप वो निकालते हो वो चीज. बट इट्स ओके लाइक इधर टूथपिक और स्टिक दे आर जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. मतलब बेसिकली दे आर सेइंग कि आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हो या फिर आप एक लकड़ी और आप एक स्टिक लेके पढ़ रहे हो उसका रिजल्ट सेम आएगा. टूथपिक मीन्स दैट. Is this clear? फिर I'll just go to the options. अगर uh, Vaibhav, can you please repeat? You were not audible. Okay, so somebody said the answer is D. Okay, let's see. Guys, give me 2 minutes. I just lost. Okay. Milind is saying D. Thank you guys for responding. Okay, so we'll just go one by one. Also, Aisha or Milind, if you want to unmute yourselves or like just explain why you choose D as an answer, you can do that too. I'll be so happy. But then we'll just go one by one, even if you're not. So, चलो A को देखते हैं. One should use different educational tools to teach engineering to civilians than are used to train military personnel. इधर बोल रहे हैं कि इधर वी आर सेड कि हेल्प जस्टिफाई द रीजनिंग अबव. हमारा रीजनिंग क्या है? वी शुड नॉट परचेज टेक्नोलॉजिकली एडवांस टूल्स. अब इधर ये लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो जो चीजें आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सिखाते हो जैसे और आप वो डिफरेंटली मिलिट्री पर्सनल को आप बस वही चीजें दूसरी तरीके से सिखाते हो. आई थिंक दिस मे बी लाइक ठीक है बट इट डज नॉट सॉल्व कि हाउ इट इज हेल्पिंग इन जस्टिफाइंग दिस थिंग. इट इज द मोस्ट option A is doing that. It is helping justify कि ठीक है like you should use different things to teach different groups of people. But what they are not addressing is that they are not saying कि why should we not purchase technologically advanced educational tools है ना. ये लोग बेकार में उर्वश. guys am I audible? क्योंकि मेरा हेडफोन थोड़ा खराब है तो हो सकता है. तो guys am I audible right now? Yes, ma'am. Okay, so whenever I'm like not audible, just वो raise hand या फिर कुछ भी कर देना. हाँ, thank you. Okay, so A is definitely not the answer because यहाँ पे हम लोग बेकार का comparison क्यों करेंगे है ना. Option B says high-tech solutions to modern problems are ineffective unless implemented by knowledgeable personnel. बी बोल रहा है कि अगर आप कोई हाईटेक चीजें यूज कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अगर कम नॉलेजेबल कोई आदमी उसे यूज करेगा तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. बट हमारे इधर तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लाइक किसका नॉलेज ज्यादा है किसका नॉलेज कम है. वी आर नॉट डीलिंग विथ कौन इसको ऑपरेट कर पाएगा कि नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें चीजें क्यों नहीं करनी. Kalpana, did you have a question? Hi Kalpana. Okay. In options, so are these two options clear? Only then I'll proceed to the next few. क्योंकि guys आपको समझना पड़ेगा that हम ना अभी basics कर रहे हैं और ये आप मुझे 10 बार बोलोगे समझाने के लिए हम कर देंगे. But you have to give me the assurance that you are understanding properly है ना. तो are these two options clear? A and B. Okay. So in C, ये लोग बोल रहे हैं कि spending large sums of money on educational tools is at least as justified for non-military training as it is for military training.
अब ये तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना जस्टिफाई कर रहे हैं, हमें तो ये प्रूफ करना है कि नहीं, हमें वी आर नॉट ट्राइंग टू स्पेंड मनी। और ऑप्शन सी तो डायरेक्टली ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो ये तो हम पहले एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन डी देखते हैं। वन शुड नॉट इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव टीचिंग एड्स unless there are no other tools that are less expensive and at least as effective. तो ऑप्शन डी इज टॉकिंग अबाउट कि यू शुड नॉट इन्वेस्ट समवेयर जो आपको कम में ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये तो लॉजिकल है ना कि आप ज्यादा उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे एंड ज्यादा लाइक सेम चीज सेम रिजल्ट आप प्राप्त करने के लिए यू आर नॉट गोइंग टू अ हायर एक्सपेंसिव ऑप्शन, है ना। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आवर कंक्लूजन इज सेइंग। सो वन शुड नॉट ऑलवेज परचेज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एजुकेशनल टूल्स। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि डोंट इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव टीचिंग एड्स अनलेस कोई और अदर ऑप्शंस नहीं है। तो डी एकदम परफेक्टली फिट कर रहा है, सो डी इज द आंसर। Is it clear? Also, I think two people answered, Milind and Aisha. Congratulations, guys. I'm so proud of you. Very good. Like, keep this on. So, is this question cleared or do I explain again? अगर कहीं पे भी डाउट हो, just tell me. Question number 10. Okay, thank you. I'm moving on to question number 11. ये कैसा? क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करते, 12 इज अ बेटर क्वेश्चन आई फील। तो 12 एक बार देख लो। आई गिव यू 2 minutes। Has everyone read question 12? I'll, should I start with question 12? Okay, so I'll just start with question 12. यार बहुत easy है, इसमें ज़्यादा like दिमाग की ज़रूरत भी नहीं है। So here our question is the proportion of women among students enrolled in higher education programs has increased. जो like women का जो कॉलेज हायर एजुकेशन प्रोग्राम है उसका परसेंटेज बहुत इंक्रीज हुआ है ओवर द पास्ट डेकेड। तो इधर हाउ आर वी कमिंग टू द फैक्ट? तो गाइज ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि देखो लाइक हम लोग पहले जो क्वेश्चंस करते थे उसमें वी ऑलवेज हैड आवर कंक्लूजन इन द लास्ट, बट इस क्वेश्चन में हमारे शुरू में ही कंक्लूजन दे दिया उन्होंने कि द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन हैज इंक्रीज्ड इन हायर एजुकेशन, बस और कुछ आपको याद नहीं रखना इधर से। This is partly shown by the fact that in 1959, only 11% of women between 20 and 21 were enrolled, while 1981 में 30% of women between 20 and 21 were enrolled. तो क्वेश्चन समझे, इट्स वेरी सिंपल। लाइक जब 1950 जब साल 1959 था तो ओनली 11%, लाइक सिर्फ 11% women थे between 20 and 21 who were enrolled in college, और 1981 में वही 11% increased to 30% of the women between 20 and 21 who were enrolled in college. So इससे हमें पता चलता है कि proportion का women बहुत ज्यादा था।
So now our question, so this is our this thing is our conclusion. आप सिर्फ ये याद रखना. Then, to evaluate the argument above, it would be most useful to compare 1959 and 81 with which? With what? मतलब इन चारों जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये कौन सा is helping to come to this as a conclusion. I'll give you 2 minutes. Just think about it. क्योंकि ये बहुत easy question है. इतना easy तो क्लैट में आएगा भी नहीं. But it's just very conceptual. Let me see if there are any answers. Okay, Aisha is saying option A. Good. Does anybody else want to try? Okay, I'll just move on. A. Okay. See, guys, आप जब आंसर दे रहे हो ना, तो you have to read carefully. Like, let's start with option A since like उसमें ज़्यादा लोगों ने said. The percentage of women between 20 and 21 who were not enrolled in college. Like अगर आपको पता चलता है कि कौन सी women who were not enrolled in college, तो how will you find, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कॉलेज में कौन सी women ज्यादा है? क्योंकि घर में तो लाइक वुमेन बैठ सकते हैं ना. लाइक आपको ये जान के फायदा ही क्या होगा कि घर में कितने 20-21 एज के विमेन बैठे हैं. आपको तो जानना है कि कॉलेज में कितने विमेन ने भर्ती हुए ना. एम आई मेकिंग सेंस? क्योंकि इधर गया है, अगर इफ दिस ऑप्शन वाज कि who were enrolled in college, not what अगर नहीं होता तो this would have been the correct answer, no doubt about it. बट इधर बोल रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ वुमेन जो कॉलेज में नहीं थे. अरे नहीं थे तो घर में थे, कुछ काम कर रहे थे, डज नॉट मैटर ना. मतलब कि वो लोग हायर एजुकेशन में नहीं थे, तो ऑप्शन ए नहीं होगा. बट दिस वाज अ वेरी ट्रिकी थिंग, क्योंकि आपको लाइक देख के समझना पड़ेगा कि नो, नॉट एनरोल्ड इन कॉलेज. सो लेट्स गो टू बी. द परसेंटेज ऑफ वुमेन between 20 and 25 who graduated from college. अब एक बात सुनो, अगर कोई विमेन ग्रेजुएट कर रहे हैं, मे बी वो लोग कॉलेज ज्वाइन करके छोड़ दिए मिडवे, वो सोचे 2 साल बाद कि ठीक है, आई डोंट वांट माय डिग्री, तो दैट ग्रेजुएशन लाइक इट डज नॉट गिव अस दैट मच ना, दैट इंफॉर्मेशन ना कि एनरोल कितने हुए थे. And because you know guys, this is very true especially for women and like other oppressed people, that अगर 10 लोग if they take admission in college ना, आप जब graduation list देखोगे तो आप देखोगे कि 5 या 4 women like have graduated. So that is not a correct identification of enroll कितनों ने किया था, क्योंकि शायद वो लोग enroll किए फिर college छोड़ दिए, वो they could not attend college. तो ग्रेजुएशन देख के तो हमारा लाइक सीन नहीं बनेगा. ऑप्शन सी टॉक्स अबाउट कि द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आफ्टर अटेंडिंग कॉलेज एंटर्ड हाईली पेड प्रोफेशन. तो ठीक है ना, तो ये तो मतलब नहीं है, ये तो मतलब कॉलेज के बाद चला गया कि वो लोग कॉलेज खत्म किए फिर वो लोग हाईली पेड प्रोफेशन में चले गए. तो ये तो होगा ही नहीं. लाइक फर्स्ट हम लोग यही एलिमिनेट करेंगे. No, it's not B, because like graduation, like did everyone understand ABC? Why it's not ABC? Then I'll go to the correct answer, which is D. Is itna tak clear sabko? अब ऑप्शन डी पे आते हैं, विच इज द करेक्ट आंसर. द परसेंटेज ऑफ मेन बिटवीन 20 and 21 who were enrolled in college. अब ये चीज देखो,
like अगर आपको like you have 60% men in one college, like out of 100 students you know कि ठीक है 60% men होंगे, then the other 40% must be women. Like of course, like we are not taking, you know, like what gender people identify as, because that's a very whole different issue altogether. But just for the sake of doing logic, like let's assume कि बाकी 40% are women. तो अगर आपको मेन का परसेंटेज पता है कि मेन हमारे पास लाइक 50% मेन है, तो 50% विमेन होंगे ना जो एनरोल किए, तो इससे तो हमारा ये कंक्लूजन सेटिस्फाई हो जाता है. हैज इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट डेकेड. अगर 1959 में 11 89 men were there, so that means 11% women were there, है ना? So is this logic clear? So answer is D. हाँ, तो आई जस्ट एक्सप्लेन क्योंकि इज इट क्लियर? एबीसी आपका नाम क्या है? इट्स सो वियर्ड कॉलिंग यू फोकस्ड एबीसी. लाइक इट्स अ गुड थिंग. Saurabh, ma'am. ओके. Saurabh, Saurabh. ओके सौरभ. But Saurabh, did you understand the logic? Yes, ma'am. So guys, so we did 10, we did 12. Is अगर इन दोनों में से कुछ डाउट है तो you can tell me. I'll explain again. um, आई होप डाउट नहीं होना चाहिए, बट हुआ तो ओके. सो वील जस्ट मूव ऑन. अच्छा ठीक है गाइज, आई थिंक लाइक मेनी पीपल आर एबल टू आंसर. सो शुड वी प्रोसीड टू वीकेनिंग, और या फिर एक लास्ट स्ट्रेंथनिंग का कर लेते हैं फिर वील गो टू वीकेनिंग? कौन सा डू यू वांट? लाइक आई एम गोइंग टू डू वट एवर यू गाइज वांट, सो यू टेल मी. Then what we can do is we'll just do एक और स्ट्रेंथनिंग का जल्दी से कर लेंगे, फिर we'll move to weakening. Yeah, let's do 14. 14 का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. एक बार 14 का क्वेश्चन पढ़ लो. I'll give you 2 minutes. Has anyone read? Okay, we'll just do one question, Abhiksha, then we'll just move to weekly. ठीक है, ये ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं. वी हैव टाइम ऑल्सो गाइज. आई एम सो सॉरी, आई ज्वाइन थोड़ा लेट आज. तो ओके, सो द क्वेश्चन 14 हैज सेज इज, when people evade income taxes, when people evade income taxes by not declaring taxable income, a vicious cycle results. Tax evasion forces lawmakers to raise income tax rates, which causes the tax burden on non-evading taxpayers to become heavier. This in turn encourages even more taxpayers to evade income by hiding taxable income. तो इधर ये लोग बोल रहे हैं कि when people evade income taxes, like अगर आप आपका जो taxable income है वो आप गवर्नमेंट को ठीक से रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो दैट इज बेसिकली योर इवेडिंग इनकम टैक्सेस, है ना? तो अ विशियस साइकिल रिजल्ट्स. तो व्हाट इज दिस विशियस साइकिल? Tax evasion forces lawmakers to raise income tax rates,
which causes tax burden on non-evading taxpayers. मतलब अगर हम सोचो हम बहुत लाइक स्कैम करते हैं, मेरा तो पूरा ब्लैक मार्केट का बिजनेस चल रहा है, एंड आई हैव 10 रुपीज विच इज माई इनकम, वो हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हम तो बहुत लाइक शरीफ इंसान है, हम मेरा इनकम 5 रुपए हो रहा है, बट मेरा एक्चुअली में माई इनकम इज 10 रुपए, बट हम गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 5 हो रहा है। और आप सपोज लाइक यू आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, लाइक आपका 5 रुपए इनकम हो रहा है, आप 5 रुपए ही गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर रहे हो, तो 10 रुपए में सपोज आई हैड टू गिव 10 रुपए में आई हैड टू गिव टू गवर्नमेंट 2 रुपीज का टैक्स, 4 रुपीज का टैक्स, और 5 रुपए में यू हैड टू गिव द गवर्नमेंट 2 रुपीज टैक्स। तो जब हम 10 रुपए अर्न करके हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि चलो हम मेरा तो इनकम 5 रुपए है, आप ये ले लो, 2 रुपए ले लो हमसे, और आप लाइक शरीफ हो, लाइक यूर एन ऑनेस्ट पर्सन, यू आर अर्निंग 5 रुपए और आप 2 का दे रहे हो, तो इससे क्या होता है, तो इससे अब मुझे लेस अमाउंट देना पड़ रहा है, बट गवर्नमेंट को तो मेरे बट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में तो दे आर कैलकुलेटिंग कि आई हैव टू पे मोर, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम कर रहे हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर मेकिंग जो टैक्स रेट है ना, तो पहले सपोज 5% है, तो अभी वो लोग 10% कर दे रहे हैं टैक्स रेट को, क्योंकि उनको तो उनका प्रॉपर रेवेन्यू नहीं मिल रहा ना। तो ये जो वो लोग 5 से 10% कर रहे हैं, तो इससे आप लोग लाइक यू आर द ऑनेस्ट पर्सन, तो इससे आप लोग भी ऑनेस्ट, आप लोग भी बोल रहे हो चलो मेरा तो 5 रुपए इनकम नहीं है, मेरा 3 रुपए इनकम है, तो कर लो अब जो करना है। तो this in turn encourages even more taxpayers to evade income taxes by hiding them. तो आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हो, यू वर ऑनेस्ट, पहले मैंने लाइक शुरू किया शैतानी करना, मैंने 5 रुपए बोला, और अब आप जब देख रहे हो कि 5 से आपका 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आप भी उसे कम करने लग रहे हो ना। इज द क्वेश्चन क्लियर? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। Okay. So now our conclusion is इधर का. So guys, can anyone tell me what the conclusion is? तो इधर हमारा कंक्लूजन है कि जब लाइक हम इनकम टैक्स इवेड कर रहे हैं, तो दैट कॉजेज इवन ऑनेस्ट पीपल टू इवेड देयर इनकम टैक्सेस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. ऑप्शन ए में व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग is an increase in tax rates tends to function as incentive for taxpayers to try to pay their increase in pre-tax incomes. अब ये देखो, इधर बोल रहे हैं कि vicious circle above could not result unless which of the following were true. Like इस vicious circle को काम करने में something has to be true. अगर ए ट्रू हुआ कि एन इंक्रीज इन टैक्स रेट्स टेंड्स टू फंक्शन एज इंसेंटिव, तो हमारा तो अगर उनको इंसेंटिव मिलेगा तो वो तो लाइक शरीफ तरीके से दे देंगे ना पैसे, तो इंसेंटिव होने से तो इट डज नॉट प्रूव दिस विशियस सर्कल ट्रू. तो ए इज नॉट आवर आंसर. दिस इज एनीबडी एबल टू आंसर अभी तक? इट्स ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इट्स हार्ड, बट अगर आप समझ गए तो इट्स ब्यूटिफुल. In option B, some methods for detecting tax evaders and thus recovering some tax revenue lost through evasion bring in more than they cost, but success rate varies from year to year. इधर ये लोग बात कर रहे हैं कि डिटेक्टिंग की कौन टैक्स इवेट कर रहे हैं एंड दस रिकवरिंग सम टैक्स रेवेन्यू लॉस्ट. इधर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि लाइक आपको, आप शरीफ होते हुए भी आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं समझने में कि अच्छा इसने तो टैक्स दिया था पूरा, इसने पूरा टैक्स नहीं दिया था. तो बी इज नॉट द आंसर बिकॉज इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप ऑफ द क्वेश्चन. Coming to option D,
No one who routinely hides some taxable income can be induced by lowering of tax rates to stop hiding such income unless fines are raised at the same time. ये बोल रहे हैं कि जो लाइक फ्रीक्वेंटली ऐसा लाइक टैक्स हाइड कर रहे हैं कैन बी इंड्यूस्ड बाय लोअरिंग लोअर टैक्स रेट्स, लाइक अगर आप लोअर कर दोगे ना तो उनका क्राइम कम हो जाएगा. बट दिस इज नॉट ट्रू, उनका तो क्राइम कम नहीं हो रहा है, लाइक शरीफ लोगों को दिक्कत हो रही है ना. तो डी इज ऑल्सो नॉट द आंसर. Coming to C, when lawmakers establish income tax rates in order to generate a certain level of revenue, they do not allow adequately for revenue that will be lost through evasion. अब सी देखो, जब पार्लियामेंट के लोग लॉ बना रहे हैं तो दे तो नो ना कि कितना रेवेन्यू कंट्री में हो रहा है, तो वो लोग उसी हिसाब से लॉ बनाएंगे कि ठीक है आपका इनकम ये हुआ तो आप ये पे करोगे. तो वो लोग तो ये अकाउंट में नहीं दे रहे हैं ना कि कुछ पैसे लॉस्ट हो जाएंगे. वो लोग तो सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ सब ऑनेस्टली एकदम पैसा देंगे, सब लाइक कोई कुछ गलत रिपोर्टिंग नहीं करेगा. They do not allow adequately for revenue that will be lost through evasion. Like वो लोग जब लॉ बना रहे हैं वो तो ये काउंट नहीं कर रहे हैं ना कि चलो इतना पैसा तो मेरा चला ही जाएगा. So that is why C is also not, that is why C is the answer. Is it clear? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, so I am happy to explain again. I just see the chat box. Okay guys, is this one clear? Wait, I'll give you space to read. Hi guys, is this clear? This question? Something understand. Gautam, do you want me to explain again? Which part do you want me to explain? हाँ, which part? Just देख लो एक बार. Then we can move on to weakening कैसे करते हैं. अगर आप एक बार स्ट्रेंथनिंग समझ जाओ तो मुझे लगता नहीं है कि वीकनिंग इज गोइंग टू बी टफ, क्योंकि वीकनिंग आपका स्ट्रेंथनिंग से ज्यादा इजी है. स्ट्रेंथनिंग में यू हैव टू फाइंड कि कौन सा लाइक स्ट्रेंथन कर रहा है, कौन सा इज फॉल्ट. बट वीकनिंग में जब आप देखोगे कि नेगेटिव जा रहा है तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. तो अगर आप ये समझ लोगे तो वीकनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी. एक बार देख लो, then I won't do any more questions. What I'll do is I'll just send this worksheet to the class. Okay, guys. So assignment. So देखो, I haven't done all the questions and I don't know why यार कोई ना मुझे doubt नहीं पूछता, तो I don't know if it's a good thing or not. But I want you to ask doubts. So I will be sending this sheet. I'll be posting it in the group. आप लोग इस sheet को पूरा solve कर लेना. I will not be sending the answers abhi. I will send the answers in the next class. अगर आप नहीं समझे कुछ question, I want you to DM me or Akshat. We are available on WhatsApp. तो आप लोग either मुझे और Akshat is another teacher. He's also very helpful. He's very good with teaching and everything. तो whoever you feel comfortable with, आप जरा text कर लेना हमें या अक्षत को. We will be helping you out, but there are ज़्यादा questions भी नहीं है इसमें. I think there are only 20 questions and we have already done most of it. So शायद आपको like 10 ऐसा कुछ करना पड़े. So I think this is very doable as an assignment. Also guys, आपका वो कैसा चल रहा है newspaper reading? Are you reading frequently? Are you solving mocks? How is it going? Because CLAT is in 3 months, like 2.5 months. So whatever you're doing, you have to pull up your socks at this point of time. Anybody wants to reply? कैसा चल रहा है? So which mock, like if you are giving any mocks or just practicing in general mocks, so I think there is a mock this Sunday only from Nalanda. Like apart from Nalanda, if you're doing not mocks, okay, that's all right. Also na, I think I may have like kuch previous years ke mocks. I just look for them. I'll just send them to you.
But I'm just hoping strengthening is clear. Even if it's not, we have a class on Sunday. We can discuss our doubts. So I'll just move on to this. I'll just move on to weakening. ठीक है ना? Wait, I'll just stop presenting and then yeah. Hi guys, is my screen visible to everyone? दिख रहा है ना? Yes, मैम। ma'am. Okay, thank you. Okay, so this is we are starting with weakening now. अब देखो स्ट्रेंथनिंग में हम लोग क्या कर रहे थे व्हाट वी वर डूइंग इज वी यूज्ड टू फाइंड द कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेज और ऐसा एक ऑप्शन वी यूज टू आइडेंटिफाई जिसमें वी वर स्ट्रेंथनिंग व्हाट द कंक्लूजन यूज टू से दैट वाज वेरी लाइक दैट वाज तो सेम वीकेनिंग का भी आपका सेम होता है. But the thing is, instead of supporting the conclusion, here you have to break the conclusion. How will you break the conclusion? You have to find an option which is negating our conclusion. वो पूरा conclusion को तोड़ दे रहा है. तो we will just like questions के through we will like start. So okay, so just read question 6. So is anybody answering or doubts or anything? Okay. So in question 6 सेम चीज हम पहले अपना वो आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज आवर सो लेट्स स्टार्ट विद 6 विद द पैसेज ऑफ द न्यू नहीं टैक्स नहीं करेंगे लाइक अभी टैक्स किया ना लेट्स डू 7 लाइक अभी टैक्स किया फिर से नहीं करना मुझे जस्ट सॉल्व इट व्हेन आई सेंड यू दिस शीट्स घर पे ठीक है ना. तो वो 7 में द recent decline in the value of the dollar was triggered by a prediction of slower economic growth in the coming year. ठीक है, good. But that prediction would not have adversely affected the dollar had it been for the government's huge budget deficit, which must therefore be decreased to prevent future currency declines. So that's the thing. ये बोल रहे हैं कि तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंक्लूजन व्हिच वी हैव टू वीकेंड. एनीबॉडी लाइक वांट्स टू ट्राई व्हाट द कंक्लूजन मे बी. रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू लाइक कंक्लूजन जब आप आइडेंटिफाई करोगे देयर विल बी वर्ड्स लाइक सो हेंस देयरफॉर क्लियरली दस बिकॉज ऑफ दिस एज थिंग्स लाइक दिस. तो कंक्लूजन इट्स वेरी इजी इधर से. तो इधर द कंक्लूजन इज the prediction would not have adversely affected the dollar had it not been for the government's huge budget deficit, which must therefore be decreased to prevent future currency declines. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रेडिक्शन आया कि डॉलर का ये अपना
दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ईयर होगा, लाइक दूसरा ईयर उसका इकोनॉमिक ग्रोथ अपना कम होगा, एंड द इसके लिए द वैल्यू ऑफ द डॉलर ये कम हो गया। बट ये जो प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन था, दिस वाज नॉट कुछ फैक्ट्स, लाइक जैसे जो एनालाइज करते हैं ना हम, तो ये बट दिस प्रेडिक्शन वुड नॉट हैव एडवर्सली अफेक्टेड द डॉलर। Sorry guys, but this prediction would not have adversely affected the dollar had it not been for the government's huge budget deficit. मतलब ये प्रेडिक्शन ना अपना कुछ लाइक वैसा नहीं, कुछ खराब तरीके से अफेक्ट नहीं करता अपने इकोनॉमी को, अगर हमारे गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट नहीं रहता। तो इसीलिए अपने गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है ना, उसे कम करना पड़ेगा टू प्रिवेंट फ्यूचर करेंसी डिक्लाइंस। मतलब जो अपने गवर्नमेंट का टू प्रिवेंट द वैल्यू ऑफ द डॉलर फ्रॉम फॉलिंग, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रिवेंट द बजट, वी हैव टू लेसन द बजट डेफिसिट टू ऐसा फ्यूचर में स्टॉप करने के लिए। So do we have the answer yet? Anyone tried? Okay, I don't see, but it's all right. This is the first question. तो हमें ये वीकेंड करना है। तो इधर ये लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का ह्यूज बजट डेफिसिट है, इसको हमें कम करना होगा। तो जब हम वीकेंड कर रहे हैं तो वी हैव टू फाइंड समथिंग ऑन द लाइंस कि ठीक है, ये जो बजट डेफिसिट था ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लाइक बजट डेफिसिट ज्यादा हो या कम हो, इससे हमारी इकोनॉमी को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर नेगेटिंग इट ना। तो लेट्स जस्ट सी कि ऑप्शंस में कौन सा डायरेक्टली नेगेट ही कर रहे हैं अपने कंक्लूजन को। द गवर्नमेंट हैज मेड लिटिल अटेम्प्ट टू रिड्यूस द बजट डेफिसिट। ठीक है, गवर्नमेंट ज्यादा अटेम्प्ट करे कम अटेम्प्ट करे, दिस इज नॉट सॉल्विंग एनीथिंग, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है ना। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट, तो ए इज नॉट द आंसर। डी में बोल रहे हैं B में they are saying the budget deficit has not caused a slowdown in economic growth. What do you think? Is this valid? ये क्या valid है? Like ये क्या negate कर रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि budget deficit था तो इसलिए हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ा, और इधर बोल रहे हैं कि बजट डेफिसिट ने अपनी इकोनॉमी को कोई इफेक्ट नहीं किया। तो डू यू थिंक डी शुड बी करेक्ट? Guys, I'm waiting for your answer. Okay, Abhiksha wrote D. Okay, Aisha, like, do you mind explaining कि आप क्यों no बोल रहे हो? Because I just want to know कि how the rationale is working. It does not matter यार कि तुम्हारा आंसर करेक्ट हो या सही हो, because we are all here to learn. आयशा, आप लिख भी सकते हो कि why this is, you know, like not, why do you think this is not the correct answer? Okay, I'll give you time, write it down. I'll just go to C. The value of the dollar declined several times in the year prior to recent prediction of slower economic growth. ये बोल रहे हैं कि वैल्यू का जो डॉलर का जो वैल्यू था वो तो पहले भी डिक्लाइन हो चुका है जब हमने प्रेडिक्शन ऑफ स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ बोला। So do you think it is addressing our gap? कि ठीक है उसे that is declining, that's fine. हमें तो बोल रहे हैं कि डिक्लाइन की वजह है कि क्योंकि बजट डेफिसिट है गवर्नमेंट में। तो देर जस्ट स्टेटिंग कि इसके पहले भी डॉलर डिक्लाइन किया था। आई डोंट थिंक सी इज द करेक्ट आंसर। डी में before there was a large budget deficit, predictions of slower economic growth frequently caused declines in the dollar's value.
आर दे एड्रेसिंग कि अपना मेन चीज है कि बजट का गवर्नमेंट का ह्यूज बजट डेफिसिट था। डेफिसिट मतलब कम, गवर्नमेंट का बजट बहुत कम था, लाइक बहुत ज्यादा मार्जिन से, तो इसीलिए डॉलर का प्राइस गिर गया। इधर बोल रहे हैं कि इसके पहले साल भी देयर वाज लार्ज बजट डेफिसिट, और इसके लिए इसका ग्रोथ कम हो गया। दैट इज तो दिस, ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है ना। ये तो बोल रहा है कि बजट डेफिसिट था तो इसलिए ये स्लो हो गया, और अपना तो कंक्लूजन भी वही है, बट यहाँ पे तो हम वीकेंड कर रहे हैं ना। तो दैट इज वाई बी इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर, है ना। मुझे लगा कि आप सी को बोल, ओ ओके ओके, या कंप्लीटली फाइन। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे। अभिप्सा, कंग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग द राइट आंसर। सो बी बोल रहे थे बजट डेफिसिट हैज नॉट कॉज्ड अ स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मेरा बजट डेफिसिट ने स्लो डाउन नहीं किया है, तो इधर तो बोल रहे हैं कि बजट के लिए मेरा हुआ है। अगर बजट के लिए मेरे इकोनॉमी का फायदा लाइक स्लो नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स दूसरे वजह से कर रहा है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग। दे आर सेइंग बजट से हो रहा है, इधर बोल रहे हैं कि नहीं बजट डेफिसिट से नहीं हो रहा। सो बी इज द क्लियर कट आंसर। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ये थोड़ा इजी ही था, आई विल से। इफ यू हैव डाउट्स हम तो एक्सप्लेन कर देंगे, बट अगर आपको लाइक अगर क्या आप समझे हो द रैशनल बिहाइंड इट। Is the answer clear, guys? And how we derived the answer? Okay, so I'm just moving on to the next question. Yeah, 8. Let's do 8. 8 बोल रहे हैं अच्छा, आई जस्ट गिव यू 2 minutes टू रीड, आप पढ़ लो, देन वील स्टार्ट डिस्कसिंग टुगेदर। Okay, so I think we'll just start discussing. Wait, I'll just check if anybody has read it or not, understood it. Ma'am, passes not clear understanding so far. और गौतम, आई मीन आप थोड़ा समझा दोगे what you wrote? Passes not clear, like कौन से passes are you talking? सॉरी मैम, पैसेज बोल रही हूँ। ओ अच्छा अच्छा, पैसेज। अच्छा, पैसेज आप ये पैसेज की बात कर रहे हो ना? आर यू टॉकिंग अबाउट ये वाला क्वेश्चन 8 वाला? बहुत सारे पैसेज हाँ से। नो मैम, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर या अंडरस्टैंड नहीं हो रहे, तो जल्दी से क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। ओ अच्छा अच्छा, आर यू टॉकिंग अबाउट लॉजिक का या फिर दूसरा सब्जेक्ट का? हाँ, लॉजिक, लीगल लॉजिक। अच्छा ठीक है। अच्छा गौतम, आप एक काम कर सकते हो, कैन यू टेक्स्ट और कॉल मी, फिर लाइक वी कैन टॉक अबाउट विच पोर्शंस यू आर एग्जैक्टली हैविंग द प्रॉब्लम्स इन। ओके मैम। ओके। मैम, नंबर मेरे पास तो नहीं है। हाँ हाँ, हम क्लास के लास्ट एंड में आई गिव द नंबर वंस अगेन। ओके मैम। Okay, so we'll just go to the question again. We'll just read number 8.
So 8 is a group of children of various ages were read stories in which people caused harm, some of those doing so intentionally and some accidentally. When asked about appropriate punishment to those who had caused harm, the younger children, unlike the older ones, assigned punishment that did not vary according to whether the harm was done intentionally or accidentally. तो देयर वाज द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन लाइक बहुत एजेस के थे लाइक 4 साल के बच्चे थे 5 साल 6 साल तो ऐसे लेट्स से देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो उनको क्या दिए हम वी गिव देम स्टोरीज इन विच पीपल कॉज्ड हार्म तो उन स्टोरीज में कुछ लोगों ने ना इंटेंशनली हार्म कॉज किया कि मुझे पता है कि आपको इससे बुरा लगेगा बट फिर भी आई डिड दैट और कुछ एक्सीडेंटली लाइक हम करना नहीं चाहते थे बट सपोज मैंने केले का छिलका बाहर फेंक दिया और उससे लाइक कोई फिसल के उनको चोट पहुंची तो दैट इज एक्सीडेंटल ना बिकॉज आई डिड नॉट मीन कि हम उनको लाइक हार्म पहुंचाए तो कुछ लोगों ने इंटेंशनली किया कुछ लोगों ने एक्सीडेंटली किया तो व्हेन आस्क्ड अबाउट कि क्या पनिशमेंट इन दोनों को देना चाहिए जो छोटे बच्चे थे ना द यंगर चिल्ड्रन उन्होंने बोला कि नहीं लाइक उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लाइक उन्होंने सबको सेम ही पनिशमेंट दिया कि अगर आप इंटेंशनली भी करोगे आपको सेम पनिशमेंट मिलेगा अगर आप ये गलती से भी करोगे आपका पनिशमेंट सेम रहेगा Younger children then do not regard people's intention as relevant to punishment. तो इससे क्या पता चलता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं कि वो लोग इंटेंशन नहीं देखते अगर आपने कुछ किया है ना तो आपको मिलेगा पनिशमेंट तो इज एनीवन एबल टू आइडेंटिफाई कि हमारा कंक्लूजन क्या है इस पैसेज से गाइज आई एम वेटिंग फॉर द कंक्लूजन यार बताना ही होगा ये इजी है बहुत गाइज आई नीड द कंक्लूजन क्या है इस पैसेज का Younger children then do not regard people's intention as relevant to punishment. Okay, who said that? Abhipsha? Ma'am, Abhiksha. Yeah, okay, yeah, exactly, that thing only. Thank you, Abhipsha. So, as Abhipsha said, हमारा इधर पैसेज का कंक्लूजन है यंगर चिल्ड्रन डू नॉट रिगार्ड पीपल्स इंटेंशन एज रेलेवेंट टू पनिशमेंट आप कौन से लाइक नियत से कुछ बुरा काम कर रहे हो ये उनको फर्क नहीं पड़ता तो बिफोर गोइंग टू द ऑप्शंस तो इसका एग्जैक्ट उल्टा क्या होगा इसका उल्टा यही होगा ना कि यंगर पीपल नहीं उनको फर्क पड़ता है वो लोग देखते हैं पीपल का इंटेंशन जब उसका पनिशमेंट डिसाइड करते हैं है ना ये तो एग्जैक्टली ऑपोजिट ही है इतना तक इज इट क्लियर विद एवरीवन कि इसका इफ वी हैव टू नेगेट द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज कंसिडर कि नहीं यंगर चिल्ड्रन do indeed consider people's intentions to be relevant for giving out their punishment. That is our negating the conclusion. This is exactly the exact step which you have to do. जब आप एक कंक्लूजन देख लोगे एंड यू आर गिवन अ वीकनिंग थिंग आप जस्ट उसे नेगेट कर देगा राम इज गोइंग टू द हॉस्टल Ram is not going to hostel, that kind of a thing. So we have our conclusion, we have our negated conclusion. So let's see कि options में क्या दिया है. 8 is anyone trying this question like कोई answer क्या हो सकता है? Anyway, I'll just start. In interpreting these stories, the listeners had to draw on a relatively mature sense of human psychology
in order to tell whether harm was produced intentionally or not. जब आप ये स्टोरीज लाइक इंटरप्रेट कर रहे हो तो द लिसनर्स हैड टू ड्रॉ अ रिलेटिवली मच्योर सेंस, गाइस ये वाला वर्ड है, मच्योर सेंस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी in order to tell whether harm was produced intentionally or accidentally. So what we can identify from this is uh, option C, option A, option C. Okay, then we'll just talk about A and C. Like first, तो जब एक छोटा बच्चा इधर बोल रहा है कि या छोटे बच्चे ये लोग इंटेंशन नहीं देखते, तो इधर ए में बोल रहा है कि जब ये छोटे बच्चे ये लोग ये कहानियां सुनते हैं ना कि किसने हार्म किया किसने हार्म नहीं किया, तो उधर दे टू अंडरस्टैंड कि किसने इंटेंशनली हार्म किया और नॉट, दे नीड टू हैव अ रिलेटिवली मैच्योर सेंस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. अगर वो समझेंगे ही नहीं कि ये उन्होंने इंटेंशनली किया या एक्सीडेंटली किया, तो दैट मीन्स दे आर हैंडलिंग आउट पनिशमेंट एवे ही ना. मतलब जो बच्चे सुन रहे हैं दे आर नॉट लुकिंग एट इंटेंशन और एक्सीडेंट, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये इंटेंशनली कर रहे हैं या एक्सीडेंटली, और उन्होंने जस्ट देखा कि चलो हार्म तो हो रहा है तो दैट्स व्हाई दे विल बी गिल्टी, है ना. तो ए तो नेगेट कर रहा है ना इसको कि डू नॉट रिगार्ड पीपल्स इंटेंशन एज रेलेवेंट टू पनिशमेंट, क्योंकि ये बच्चे तो पीपल के इंटेंशन को समझ ही नहीं पा रहे. ये तो पूरा समझ, इन बच्चों को तो अभी मैच्योरिटी ही नहीं है कि ये समझने में कि क्या ये इंटेंशनली कर रहे हैं. तो व्हेन दे आर डिलीवरिंग देयर वर्डिक्ट कि ओके यू नीड टू गेट पनिश्ड वाया दिस, तो वो लोग तो जस्ट ऐसे ही बोल दे रहे हैं ना क्योंकि उनको समझ नहीं है. दैट इज व्हाई ए सीम्स लाइक अ प्रोबेबल ऑप्शन. बट इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड कि लाइक अगर ए मतलब वी हैव टू लुक एट ऑल द ऑप्शंस. सो लेट्स गो टू सी. Younger children are as likely to produce harm unintentionally as are older children. अब ये देखो, इधर बोल रहे थे दे आर एज लाइकली टू प्रोड्यूस हार्म अनइंटेंशनली, मतलब इधर बट क्वेश्चन में तो ये लोग सिर्फ स्टोरी सुन रहे हैं ना, दे डोंट नीड टू हार्म देमसेल्व्स और अदर पीपल, और उनको लाइक और एज, और यू आर नॉट कंपेयरिंग देम विद ओल्डर चिल्ड्रन, क्योंकि पूरे पैसेज में दे आर नॉट सेइंग कि ओल्डर चिल्ड्रन ने बोला कि ओके ये लोग तो इंटेंशनली नहीं कर रहे तो पनिशमेंट दे दो. तो सी थोड़ा इरेलेवेंट हो जा रहा है विद रिगार्ड्स टू द पैसेज सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्डर चिल्ड्रन एट ऑल. एंड इसका कंपैरिजन आता ही क्यों है, क्योंकि दे आर जस्ट सेइंग कि दे आर एज लाइकली टू प्रोड्यूस हार्म अनइंटेंशनली. तो वो लोग खुद इंटेंशनली हार्म करे नहीं करे तो इससे फर्क क्या हो रहा है ना मेरा. आर दीज टू ऑप्शंस क्लियर फॉर नाउ? Yes, ma'am. Okay, I'll just go on to the next two then. In these stories, the severity of the harm produced was clearly stated. हाँ, तो अगर वो हार्म सीवियर है कि नहीं है, इधर तो वी आर टॉकिंग कि ये इंटेंशन से हुआ है या एक्सीडेंटली हुआ है. हम केले के छिलके से गिर के मेरे पैर में खरोच आ रही है, या फिर हम एकदम गिर के आई एम ब्रेकिंग टू ऑफ माई लेग्स, दैट इज नॉट इन क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि मैंने केले का छिलका इंटेंशन से फेंका क्या कि चलो उसका तो हार्म होगा तो हम तो वही चाहते हैं, नहीं ना. तो सिवियरिटी इज नॉट द क्वेश्चन हियर. In option D, the older children assigned punishment in a way that closely resembled the way adults had assigned punishment. So ठीक है, older children they explain the pattern of thinking similar to adults. That does not justify us कि why younger children do not regard people's intention as irrelevant to punishment, है ना. तो दैट इज वाई डी इज ऑल्सो नॉट द आंसर, ए इज द आंसर, क्योंकि इधर तो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये लोग इंटेंशनली कर रहे हैं या अनइंटेंशनली. तो दैट इज वाई ए इज द आंसर. इज इट क्लियर? आई एम हैप्पी टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन as long as you have got the rationale behind it.
Is question 8 clear? Yeah. Okay. Also, I think Abhiksha answered it correctly. So, like, congratulations for that. In so let's go to option 9. चलो no, I think अच्छा 9 कर ही लेते हैं क्या फर्क है. Okay guys, just read option 9. I just give you 2 minutes, फिर we'll start discussing it again. Okay, so we'll just start doing it. I'll just see किसी ने answer किया क्या. Okay, so we'll just start एक साथ. Since the mayor's publicity campaign for Greenville's bus service began 6 months ago, morning automobile traffic into the midtown area has decreased 7%. जब से एक मेयर ने अपना पब्लिसिटी कैंपेन शुरू किया बस के लिए, ये कब शुरू हुआ? 6 महीने पहले. इन द सुबह का जो हमारा ट्रैफिक रहता है ना इन टाउन के वो मिड टाउन एरिया में, तो वो 7% से डिक्रीज हो गया. ड्यूरिंग द सेम पीरियड there has been an equivalent rise in the number of persons riding buses into the midtown area. इसी समय जब हम लाइक ऑटोमोबाइल मतलब ये गाड़ी बाइक्स ये सब जब कम हुए ना सिटी में, तो उसी टाइम में जो लोग लाइक द नंबर ऑफ पीपल जो लोग बसेस में चढ़ रहे हैं और मिड टाउन एरिया जा रहे हैं वो इंक्रीज हो गया. So obviously, the mayor's publicity campaign has convinced many people to leave their cars at home and ride the bus to work. तो लाइक जो लोग कार ला रहे हैं वो लोग कम हो गए और बसेस में लोग ज्यादा हो गए. तो इससे ऑथर क्या कंक्लूड कर रहा है कि जो मेयर ने जो अपना पब्लिसिटी कैंपेन किया है था टू कि आप अपनी गाड़ी को घर पे छोड़ दो और बस को लेके घर जाओ, तो दैट हैज बीन सक्सेसफुल. दिस इज आवर कंक्लूजन. इज दिस मच क्लियर कि मेयर का पब्लिसिटी कैंपेन इज सक्सेसफुल? अगर ये क्लियर है तो देन जस्ट टेल मी कि व्हाट विल बी द नेगेटेड कंक्लूजन. कंक्लूजन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब नेगेटेड वाला क्या होगा? Okay, I saw Urvashi has answered. I'll just wait for 1 or 2 answers, then I'll just start discussing. कोई नेगेटेड कंक्लूजन भी बता दो यार. एक एग्जाम में तो हम नहीं रहेंगे ना. ओके अरे देखो नेगेटिव कंक्लूजन इजी ही है. इधर बोल रहे हैं कि द मेयर्स पब्लिसिटी कैंपेन हैज कन्विंस्ड पीपल टू लीव देयर कार्स एट होम. तो नेगेटिव कंक्लूजन इज कि नहीं, ये दूसरा कुछ रीजन हो सकता है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द मेयर्स पब्लिसिटी कैंपेन. अब वही रीजन हमें आंसर्स में ढूंढना है. इतना क्लियर है ना? अगर आप इतना तक एग्जाम हॉल में बैठ के कर लो, आई थिंक 70% ऑफ योर वर्क इज डन.
Also guys, I'll just wait for एक दो कोई और आंसर कर दो प्लीज. Okay, wow, I have a solidarity in answering. So let's see. Okay, so guys, our class was supposed to be till 7:30. If I extend it to 7:45 to 8 o'clock, आप like कितने लोगों को प्रॉब्लम होगी? Like, will it be a problem first of all? अगर हुआ भी like, can you just tell me because हमने थोड़ा late join किया ना and I feel bad about it. Will it be a problem if I extend the class थोड़ा सा? ओके थैंक यू. देन आई जस्ट नहीं हम ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे यार. आई एम सो सॉरी. आज की तरह नहीं होगा यार. आई प्रॉमिस. ओके. Okay, so so let's go to the answers. Thank you guys. Like you know, you all are so nice and spiritual. So let's start with A. Fares for all bus routes in Greenville have risen an average of 5% during the past 6 months. ठीक है. बस का भाड़ा बढ़ा है तो दैट मीन्स तो लोग बस नहीं लेंगे ना. दैट शुड बी द लॉजिकल थिंग कि अगर बस का भाड़ा बढ़ा है तो लोग बस नहीं लेंगे. बट इधर वी हैव टू नेगेट कि मेयर का पब्लिसिटी कैंपेन ही हैज कन्विंस पीपल टू लीव कार्स एट होम एंड राइड द बस टू वर्क. So A is not the answer क्योंकि buses for all routes have risen. The mayor of Greenville rides the bus to City Hall in the city's midtown area. ठीक है, तो मेयर बस लेता है, हम बस लेते हैं, आप लोग बस लेते हो तो क्या फर्क पड़ता है? So that does not like मेरा इधर तो कुछ हेल्प नहीं हो रहा ना. ये लोग बोल रहे हैं कि लोग जब काम पे जाते हैं तो दे डोंट टेक देयर कार्स, इंस्टेड दे टेक अ बस. तो वो पर्सन अगर आप हो, हम है, मेयर है, फर्क नहीं पड़ता. तो आप तो जब क्वेश्चन में ये ऐसा आंसर देखोगे तो आप तो बी को ही सबसे पहले एलिमिनेट करोगे, है ना? In C, road reconstruction has greatly reduced the number of lanes available to commuters in major streets, leading to the midtown area during the past 6 months. और D पहले देख लेते, then we'll come to C. The number of buses entering the midtown area during morning is exactly the same as it was now. ये तो दिस डज नॉट मैटर क्योंकि हमने हमारे उधर तो बोला है कि द पीपल इन द बसेस हैव इंक्रीज, नॉट द नंबर ऑफ बसेस. ये तो बहुत ही इरेलीवेंट है. तो अब बी और डी तो आप देख के ही एलिमिनेट कर सकते हो. सी पे आते हैं. रोड रिकंस्ट्रक्शन हैज ग्रेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ लेन्स अवेलेबल टू कम्यूटर्स इन मेजर स्ट्रीट. अब ये देखो, इधर बोल रहे हैं कि मिड टाउन एरिया ऑफ द सिटी में ना वो गाड़ी कम हो गया और बसेस ज्यादा हो गए हैं. तो इसीलिए अगर तो सपोज लाइक टाउन शहर के दूसरे किसी जगह पे दे आर हैविंग रोड रिकंस्ट्रक्शन और इसका ये रिड्यूस हो गया है. तो रोड रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये नया रोड बना रहे हैं. तो इवन इफ दे आर डिक्रीजिंग द, तो if they are making new roads, तो number of roads will be greatly reduced, है ना? So that is why the number of lanes available to commuters leading to the midtown area during the past 6 months. तो रोड कम है इसीलिए that's why people buses से आ रहे हैं. वो भी कहाँ पे? मिड टाउन एरिया पे, क्योंकि दूसरे जगह पे रोड्स ये लोग प्रॉब्लमेटिक है एंड नॉट बिकॉज कि मेयर ने पब्लिसिटी कैंपेन किया है. तो दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर? ओके. रजत, आई एम सॉरी, यस आई एम मैम. सीइंग योर मैसेज राइट नाउ. तो आपने नो मैम कौन से में लिखा था? Also,
some people, like many people answered like Urvashi, Aisha, Abhipsha, Gautam. Like yeah, the C is the correct answer. Congratulations. Okay, so I'll just do I need to explain 9 का कोई part again? Then I'll move on to 10. एक बार देख लो. I hope not क्योंकि ये easy ही था ये वाला question. I just okay, so I think there's no doubts here. Hopefully, अगर हो भी आप text कर लेना, call कर लेना, कुछ भी email कर देना. That's all right. तो 10 में the question is और अच्छा फिर 10 like you can start reading. We will resume discussion at 19:38. Like we start discussing at 7:38. Okay, guys. Have you read the question? We'll just start discussing. With the emergence of biotech companies, it was feared that they would impose silence about proprietary results on their in house researchers and their academic consultants. This constraint, in turn, would slow the development of biological science and engineering. अगर लाइक ये जो ज़्यादा बायोटेक कंपनीज जब इमर्ज कर रहे हैं ना तो तो लोग डरते थे कि लाइक कंपनी के एम्प्लॉयज जो है जो इनके इन हाउस रिसर्चर्स हैं और जो एकेडमिक कंसल्टेंट्स हैं तो इनकी लाइक सपोज एक में आया कि चलो आपका ये जो केमिकल है ये हार्मफुल है तो दे विल बी लाइक साइलेंस्ड कि नहीं आप लोगों को तो इनके एम्प्लॉयड कंपनीज एम्प्लॉयर जो है ये कंपनीज ये लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो गलत है कि आप तो वही करो लाइक वही करो एज इन कि आप लोगों को मत बोलो कि दिस इज पॉइजनस दिस इज हार्मफुल तो ये लोग ये डर रहे थे एंड इसी ने इट वाज फियर्ड दैट दिस विल स्लो डाउन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग तो दिस इज वेरी इजी इसका कंक्लूजन तो देख के ही पता चल रहा है दिस विल स्लो द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग तो इन आवर ऑप्शंस वी हैव टू फाइंड समथिंग व्हिच विल नॉट स्लो ना तो वही हमारा नेगेटेड कंक्लूजन है इतना तक सबको आया ना समझ में do I see has anyone like completed okay like I'll just start then let's see like एक साथ ही देखते हैं सब A biotechnological research in which of the following if true would tend to weaken more seriously the prediction of scientific secrecy तो ये जो है ना कि इनको साइलेंट रहना पड़ेगा कि अगर ये कुछ डिस्कवर करे इसके बारे में तो दैट इज वी हैव टू स्टॉप दैट इन दीज ऑप्शंस वी हैव टू चूज समथिंग व्हिच सेज कि नहीं दीज विल नॉट बी साइलेंस्ड द रिसर्चर्स
or इनके academic consultant, they will be allowed full freedom of speech and whatever they want to say and something like that. So in option A, let's go to A. Biotechnological research funded by industry has reached some conclusions that are of major scientific importance. Let's see answers. D. Okay, Urvashi is saying D. Okay, we have lots of D. Biotechnological research funded by industry has reached some conclusion जिसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट इधर हमारे डर रहे हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा हो बुरा हो. दैट इज नॉट माई क्वेश्चन. माई पॉइंट ऑफ फोकस हियर इज दैट दे विल बी साइलेंस्ड, है ना. So B, when the results of scientific research are kept secret, independent researchers are unable to build on those results. ये तो true है, ये तो इसको strengthen कर रहा है. इधर ये they are saying कि they will impose silence और इससे biological science और engineering को harm पहुंचेगा. And they are saying कि हाँ अगर ये secret रखोगे तो independent researchers will be unable to use them. तो ये तो मेरा कंक्लूजन को स्ट्रेंथन कर रहा है, बट वी आर तो डूइंग वीकेनिंग. ऑल्सो गाइज, लाइक आई पर्सनली फेस दिस ड्यूरिंग माई क्लैट कि ना, लाइक जब वीकेनिंग दिया रहता तो हम तो जोश में आके आई वाज लाइक कि चलो ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है, मार्क कर दो. बट इवन रहता है वीकेंड तो ना मेरी तरह लाइक मत बनो, गधा मत बनो, लाइक जस्ट रीड द क्वेश्चन. In so B is definitely not going to be the answer क्योंकि इधर तो they are saying they are strengthening what we are trying to disprove. C में बोल रहे हैं कि since the research priorities of biotechnology companies are not the same as those of academic institutions, the financial support of research by such companies distorts the research का agenda. तो इधर बोल रहे हैं कि रिसर्च प्रायोरिटीज जो कंपनी का है और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का है, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ रिसर्च बाय सच कंपनी. इधर क्या, ये तो लाइक पहले आप देखोगे कि दे आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लाइक and are not the same as those of academic institutions. But guys, you have to learn कि इधर they are saying and their in-house researchers and academic consultants, and इधर बोल रहे हैं कि academic institutions. like आप दो different group of people के बारे में ही बात कर रहे हो, तो C तो होगा ही नहीं, लाइक ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा. Let's come to D. To enhance the company's standing in the scientific community, the biotechnology companies encourage employees to publish their results, especially that are important. अब ये देखो, तो ये बोल रहे हैं कि जो कंपनी का जो स्टैंडिंग है ना, तो हम आप क्यों खरीदेंगे एक कंपनी से. व्हाट डू वी सी व्हेन वी आर बाइंग प्रोडक्ट्स, पहले हम देखते हैं कि ये क्या रेप्यूटेबल है. तो ये तो वो भी जानते हैं दैट कस्टमर्स केयर ओनली अबाउट द रेप्यूट. तो टू इंक्रीज द रेप्यूटेशन इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, ये जो कंपनीज है ये खुद ही लाइक इनके ये एकेडमिक कंसल्टेंट और रिसर्चर्स को बताते हैं कि अपना रिजल्ट पब्लिश कर दो, क्योंकि ये तो उनके लिए हेल्पफुल होता है ना. तो दैट इज वाई व्हाट यू डू इज, इसीलिए दिस इज टोटली गोइंग अगेंस्ट. इधर बोल रहे हैं कि इट विल फियर दैट दे विल इम्पोज साइलेंस, और इधर बोल रहे हैं कि नहीं, ये ही खुद ही फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप अपना रिजल्ट पब्लिश करो, है ना. So that is why D is the correct answer. I hope this was easy. Do we have doubts about it? D is, yeah, so many people answered. Yeah, I'm so happy that people are actually, responding and like trying to gauge what the problem is. So is D clear? I hope it is. But नहीं भी है तो बता दो. I will explain again. We just do two more questions and we will done for the. So guys, if you have doubts, just let me know. Okay, Rameksha said it's clear. Okay.
Yeah, so we'll just go on. अच्छा guys, can you give me like 2 minutes? I'll just stop sharing. नहीं नहीं ठीक है चलेगा. नहीं जरूरत नहीं है. Go to question number 11. थोड़ा प्रॉब्लम होगा देखने में. तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर हम लोग आंसर्स डिस्कस कर लेंगे. Okay, so let's start with question number 11. अच्छा ठीक है guys, एक मिनट रुको. एक बात बोलो, like how are you finding these questions? Like difficult लग रहा है, easy लग रहा है, moderate लग रहा है? How are you finding this? है मजा आ रहा है, बेकार लग रहा है? Like tell me anything. How do you moderate? Okay, others. Also, Abhipsha, are you finding it moderate because the questions are tough, or because like I am not being properly able to explain it to you? Because these are very conceptual things, and you know, if you don't have someone who is not explaining to you nicely, I will tell Akshat ki Akshat class le lo. Akshat is extremely good as a teacher. So I just genuinely want your opinion. There's no hard feelings about anything, because flat आपको देना है, flat आपको crack करना है. And anything for you guys. If you have any problem with teaching, you prefer two teachers taking one class. These questions are extremely monotonous. Like मुझे भी खुद ही boring लगता था. Like when I was there. But then if you practice ना, like एक time आ जाएगा when you're actually difficult in English. Yeah, true. But then you know, like class में तो ऐसा ही देंगे ना, so we cannot do anything like that. Also, guys, do you prefer like two teachers taking one subject, or do you like एक teacher ही एक पूरा ले class? कौन सा is better? Because I was just talking to Akshat about this, and yeah. Do you want two teachers or just one teacher taking the class? Then next class we'll just do that only, because we were thoda confused about what you might want. Okay. Yeah, I'll just tell this to Akshat. Also, if you're facing any problem with, you know, that puzzles and analytical reasoning, bata dena. Then I'll just take one class on that also. Like where he does. अच्छा guys, ठीक है बात ही नहीं करेंगे. Sorry. Let's start with 11. Let's read it एक साथ. A proposed ordinance requires installation in new homes of sprinklers automatically triggered by the presence of a fire. However, a home builder argued that because more than 90% of residential fires are extinguished by a household member, residential sprinklers would only marginally decrease property damage caused by residential fire. तो गाइस स्प्रिंकलर का मतलब क्या है? वो जो होता है ना, लाइक हमारे इंडिया में इट्स नॉट ज्यादा अवेलेबल, बट बाहर के कंट्रीज में ये है कि अगर आप ऑटोमेटिकली दे डिटेक्ट कि चलो धुआं आ रहा है, तो दे विल लाइक एक्टिवेट वाटर सिस्टम और आपका पानी ऑटोमेटिकली गिरने लगेगा. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. तो वही बोल रहे हैं कि अब प्रपोज ऑर्डिनेंस रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन की एक गवर्नमेंट से लॉ आया, उसमें बोला गया कि आपको कंपल्सरीली स्प्रिंकलर लगाना ही है घर में, जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं जब आपके आसपास आग लगी हो. बट अब देखो, दिस इज द कंक्लूजन. क्यों? क्योंकि हाउ एवर से इट स्टार्टिंग, सो बी केयरफुल व्हेन यू रीडिंग दिस.
बट एक होम बिल्डर ने बोला कि लाइक 90% ऑफ जो रेसिडेंशियल फायर लगते हैं ना, लाइक 90 से ज्यादा, लाइक जब किसी के घर में आग लगती है तो वो आग घर का कोई मेंबर आके बुझा देते हैं। तो रेसिडेंशियल स्प्रिंकलर अगर लगाएंगे भी ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक प्रॉपर्टी डैमेज लाइक मार्जिनली डिक्रीज होगी, बट उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब वी हैव टू वीकन इट। How can we weaken? We have to either say कि नहीं प्रॉपर्टी डैमेज लाइक नहीं, we will discuss but we have to weaken it। इसका नेगेशन होगा कि 90% of proper residential sprinklers will not marginally decrease property damage caused by fire। So let's see the option। ये इधर से option है। Option did. Wait, I'll just see if anybody wrote the answer or not. No, nobody did. So let's see। Most individuals have no formal training in how to extinguish fires। Okay, good enough। Most individuals have no formal training in how to extinguish fires। अब if this is true कि उनको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है तो इनफॉर्मल ट्रेनिंग है। आप एक खुद बात बोलो, लाइक अगर आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है भी नहीं तो आप कुछ फायर नहीं बुझा सकते हो। एक आप पानी दोगे, आप उसके ऊपर एक ब्लैंकेट दे दोगे। फॉर्मल वैसा तो कोई डिग्री नहीं चाहिए ना अपने को फायर बुझाने के लिए। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं हमारा। Option B talks about since new homes are only a tiny percentage of available housing in the city, the new ordinance would be extremely narrow in scope। Since new मतलब नए घर जो बनाएंगे ना तो वो ना पूरे सिटी का लाइक थोड़ा सा ही फ्रैक्शन होगा। लाइक अभी लाइक सोचो ये टाउन बहुत पुराना है और इसमें ज्यादा जगह भी नहीं है, तो अभी आप नया कुछ घर वगैरह बनाओगे भी तो इसमें लाइक आपको वो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप 100 में से 2 घर में लगा रहे हो तो इसका स्कोप बहुत नैरो हो रहा है। this this seems to be a very like एग्जाम हॉल में लाइक मन करेगा कि लाइक चलो इसको तो मार्क करेंगे ही आज। बट द प्रॉब्लम हियर इज ये देखो इधर वी आर टॉकिंग अबाउट कि 90% ऑफ रेसिडेंशियल फायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाय हाउस होल्ड मेंबर्स, और अगर लगाएंगे भी तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर हम बोल रहे हैं कि न्यू घर में हम लगाएंगे कि या नहीं लगाएंगे, तो एक थोड़ा सा डिस्पैरिटी हो जा रहा है ना, क्योंकि इधर बोल रहे हैं कि अगर हम लगाने के बाद हाउस होल्ड मेंबर ही कर देते हैं तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इधर बोल रहे हैं कि न्यू हाउस में थोड़ा सा ही होगा तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सी में दे आर सेइंग कि द इंस्टॉलेशन ऑफ स्मोक डिटेक्टर्स in new residences cost significantly less than the installation of sprinklers। अब इधर स्मोक डिटेक्टर्स कौन सा कम किसका पैसा है, इधर तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। वी आर तो डिस्कसिंग कि लाइक फायदा होगा कि नहीं लगाने से। तो इधर पैसे की बात तो नहीं कर रहे ना कि स्मोक डिटेक्टर लगाएंगे या फिर स्प्रिंकलर लगाएंगे, तो सी तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। The largest proportion of property damage that results from residential fires is caused by fires that start when no household member is present। अब डी को ध्यान से देखो, इधर बता रहे हैं कि घर में जो ज्यादातर आग लगती है ना वो एक्सीडेंटली लगती है और उसी टाइम जब घर का कोई घर वाला नहीं प्रेजेंट होता। तो इधर बोल रहे कि जब आग लगेगी तो घर वाले तो निभा उसको बुझा ही देंगे। तो इधर इट्स डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट वी हैव हाईलाइटेड एज आवर कंक्लूजन। तो डी तो आंसर होगा, ये तो दिख ही रहा है ना, क्योंकि ये पूरा डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? आई गिव यू ये तुम हाँ, इज दिस इतना तक क्लियर? देख लो 2 मिनट, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड आई एम गोइंग टू लीव यू गाइज, आई प्रॉमिस। Okay, I'll just then move on to the next question। ये 12 आज का तो लास्ट है।
आई एम सो सॉरी गाइस, नेक्स्ट दिन से ऐसा नहीं होगा। तो 12 पे आते हैं। जस्ट रीड, आई जस्ट टेक 1 minute टू रीड। हम लोग ये एक साथ ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पहली बार वी आर डूइंग वीकेनिंग, तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू ऑल टू आंसर इट एवरी। नेक्स्ट क्लास से वील जस्ट आई जस्ट गिव यू क्वेश्चंस टू आंसर। Okay, we'll just start. More and more computer programs are that provide solution to mathematical problems are being produced, and it is thus increasingly unnecessary for practicing engineers to have thorough understanding of fundamental maths. Consequently, in training engineers who will work in industry, less emphasis should be placed on mathematical principles so that space in the engineering curriculum will be available for other subjects. तो इधर बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऐसे बन रहे हैं जो इंजीनियरिंग वाले मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसीलिए जो इंजीनियर्स होते हैं वो जो बेसिक फंडामेंटल मैथ्स करते हैं ना, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली। इसीलिए ट्रेनिंग इंजीनियर्स जो अभी वो डिग्री कर रहे हैं और बाद में वो लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनको ज्यादा मैथ्स के ऊपर फोकस नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका तो ऑलरेडी कैलकुलेटर और कंप्यूटर प्रोग्राम्स है ही। सो दैट स्पेस इन इंजीनियरिंग करिकुलम वुड बी अवेलेबल फॉर अदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसीलिए अगर मैथ्स चला जाता है तो इंजीनियरिंग के दूसरे ब्रांचेस पे दे कैन फोकस। तो इधर गाइज दिस इज द कंक्लूजन। आई एम श्योर यू हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई। तो इधर बोल रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ठीक है चलो टू वर्क इन इंडस्ट्री, टू लर्न मैथ्स टू वर्क इन इंडस्ट्री, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स है तो आप पढ़ो मत। So we have to negate this, and how do we negate? We say कि नहीं ठीक है, even if आपका कंप्यूटर है, you will still be requiring एक idea of maths. That's how we negate this. क्योंकि इधर बोल रहे हैं कि आपको मैथ्स की कोई आइडिया की जरूरत नहीं है। Is the question clear? Urvashi answered C. Okay. Is the question clear, guys? We'll just go to the options then. Option A बोल रहा है the effective use of computer programs that provide solution to math problems in engineering requires an understanding of math principles. तो ऑप्शन ए में ये लोग बता रहे हैं कि आप ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज करोगे ना, इधर तो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स है तो आपको मैथ्स की जरूरत नहीं है, बट अगर इसी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज करने के लिए यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, तो ये तो गेट्स नेगेटेड क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आपको मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आपको ये प्रोग्राम चलाने के लिए ही मैथ्स की जरूरत हो रही है तो अवर तो ये तो नेगेट कर दे रहा है परफेक्टली, है ना। तो आई थिंक ए कैन बी अ पॉसिबल आंसर। फिर 12B में many of the computer programs that provide solutions to math problems in engineering are already in routine use. ये बोल रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है ना, किसी ने टेक्स्ट, ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है ये तो ऑलरेडी इन यूज है। अरे बाबा ये ऑलरेडी यूज है, ये नहीं है आप यूज करो मत करो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज कि आपको मैथ्स नहीं चाहिए क्योंकि यू हैव ऑलरेडी दीज थिंग्स, कि यू ऑलरेडी हैव कंप्यूटर का कैलकुलेशन, तो आपको मैथ्स नहीं चाहिए। तो अगर ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑलरेडी यूज में है तो इट्स अ गुड थिंग, अगर ये प्रोग्राम्स यूज में नहीं है तो ठीक ही है। ज्यादा फर्क तो हमारे कंक्लूजन को तो फर्क नहीं पड़ रहा ना।
Development of composites and other such new materials has meant the curriculum for engineers who will work in industry must allow time for teaching the properties of these materials. ये क्या बोला? Development of development of composites and other such new materials has meant that ये जो curriculum है उनका they must allow time for teaching the properties. ये तो बोल रहे हैं कि ये जो चीज है यही आप लोगों को टीच करो. ये बोला ना कि so that space in engineering curriculum is left. तो इधर बोल रहे हैं कि मैथ्स को हटा के आप क्या करो? डेवलपमेंट ऑफ composites and other such new materials has meant. तो आप न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो. अब ये तो सपोर्ट कर रहे हैं अपने कंक्लूजन को, है ना? ऑप्शन डी बोल रहा है most of the computer programs that provide solution to mathematical problems in engineering can be run on the type of computers available to most engineering firms. ये तो पूरा ही रेलेवेंट है कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है दीज कैन बी रन ऑन कंप्यूटर्स जो इंजीनियरिंग फर्म्स के पास ऑलरेडी है. तो ये तो मैटर नहीं कर रहा ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग इंजीनियर्स हु विल वर्क इन इंडस्ट्री, फ्यूचर में काम करेंगे. तो ये तो बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग फर्म में है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लोग जो इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं. तो इज दिस क्लियर? बाई ए इज द आंसर एंड नॉट अदर दीज थ्री. जस्ट एक बार क्वेश्चन देख लो. Okay guys, so I think we are done with this. I know ये शुरू में ना प्रॉब्लम हो रहा है, but ना as like classes proceed we will be practicing more of these. I want you all to practice too. I'll just tell the materials team कि वो update कर देने के लिए इधर. So I hope you understood today's class. Any doubts, any comments कि सारा दिन में क्या हुआ? I am stopping my screen. Anybody has any problems? Because I'm here. Also, class is over, guys. If you don't have any doubts or have nothing to talk about, you can leave. Guys, if you don't have any, then I'll just leave. Then bye. मैं बहुत कठिन लग रहा है मैम. हाँ नहीं थोड़ा है क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में अभी हम लोगों ने पहले क्लास में शुरू किया था. दिस इज एक्चुअली वेरी कंसेप्चुअल. कंसेप्ट ग्रास्प करने में लोगों को 6 महीने लग जाते हैं. सो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू फाइंड दिस इजी ऑन द फर्स्ट क्लास, बट आप ट्रस्ट करो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना दिस विल स्टार्ट गेटिंग इजियर. आई जस्ट राइट माई नंबर. इंग्लिश का भी प्रॉब्लम है थोड़ा मैम. इंग्लिश का ना आप क्या वो पेपर पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो ना, तो आप एडिटोरियल्स पढ़ो. एडिटोरियल्स में प्रॉब्लम हो रहा है आपको. आपके पास इंग्लिश फैकल्टी का नंबर है ना? नहीं मैम. अच्छा, हम दे रहे हैं इंग्लिश टीचर का नंबर. यू कैन टेक्स्ट देम एनी टाइम. और आप ये इंग्लिश क्लासेस में ना इफ यू हैव एनी डाउट्स विथ एनी एडिटोरियल्स, दिस इज इंग्लिश. अगर आप आप एडिटोरियल्स पढ़ो, आपको लगे कि एडिटोरियल्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, देन आस्क योर टीचर्स, आस्क मी.
Like, all of us are here to help you guys out only. And CLAT, they have made the English very tough. I will agree with you wholeheartedly. तो whenever you're talking to your friends, like try करो कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो. like आपका इंग्लिश पता है, आपका गलत हो सही हो ये मैटर नहीं करता उतना. बट द ओनली थिंग विच मैटर्स इज आप कितना एफर्ट दे रहे हो टू इम्प्रूव दैट. तो व्हाट आई से इज कि आप रोज दिन में लाइक 2 पैसेजेस सॉल्व करो इंग्लिश का. ट्राई इट फॉर 2 weeks, एंड अगर आपका नहीं इम्प्रूव होता, कॉल मी और कॉल द इंग्लिश फैकल्टी. एनीवन विल बी रेडी टू हेल्प यू. थैंक यू मैम. Okay, guys. Are there any more doubts about anything, or and then I'll just leave? Also, the next class is on Sunday. Yes, ma'am. Okay, then I'm leaving. Bye, guys. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम. You're welcome. Bye.